آغاز میں بات عام انتخابات کی، تو خبر یہ ہے کہ 8 فروری کو فتح مسلم لیگ نون کی ہوگی، ایسا کہنا ہے صدر مسلم لیگ نون کا، اور کہا کہ موقع ملا تو لیپ ٹاپ دینے کا پروگرام دوبارہ شروع کریں گے، ہر حلقے میں سپورٹس کمپلیکس بنائیں گے، مناظر کی دعوت دینے والے پنجاب کی ترقی اور خوشحالی دیکھ لیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر کی جانب سے ایسا کہنا تھا، اور مزید یہ بھی کہا کہ ہسپتالوں میں غریب اور یتیموں کے لیے ادویات بھی مفت ہوں گی، میرے دور میں ملک میں کرپشن کم ہونا شروع ہوئی۔ مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں، سنو لاہور کے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، اگر آپ نے 8 فروری کو انشاءاللہ نواز شریف کو کامیاب کرایا تو لاہور کی گلی کوچوں سے صفائی اس طرح ہوگی جس طرح پہلے ہوتی تھی، سڑکیں صاف ہوگی، غریب اور یتیم کے لیے دوائیاں پھر مفت ملیں گی، ایکس رے اور سی ٹی سکین دوبارہ فری ہوں گے، اور غریب آدمی سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی، اور بچوں کے لیے جو قابل ہیں، ذہین ہیں، مگر ان کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں، جس طرح نواز شریف نے پچھلے دور میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پر لیپ ٹاپ دیے، اس مرتبہ خالی لاہور نہیں، پورے پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپ، ان کو تعلیمی معاف ملیں گے۔ یہ بنائے تھے یہ سپورٹس کمپلیکس نیشنل اسمبلی لیول کے اوپر، اگر انشاءاللہ اس مرتبہ موقع ملا تو ہر لاہور کی پی پی میں انشاءاللہ سپورٹس کمپلیکس بنائیں گے، اور آپ کو آپ کے بچوں کی صحت کا پورا انتظام کریں گے۔ لاہور کے حلقہ پی پی 145 میں بھی مسائل ہی مسائل ہیں، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ سیوریج کا بوسیدہ نظام پینے کے لیے آلودہ پانی علاقے کی پہچان بن گیا ہے۔ علاقہ مکین پریشان ہے، کہتے ہیں عوامی نمائندے صرف ووٹ لینے آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔ پی پی 145 کی کہانی لاہور نیوز کی زبانی۔ صوبائی اسمبلی کا یہ حلقہ مسائل کا گڑھ بن گیا، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور سیوریج کا بوسیدہ نظام ہے، پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں، علاقہ مکینوں کو امن و امان کی پریشان کن صورتحال کا سامنا ہے۔ پی پی 145 میں کوٹ شہاب الدین، جناح پارک، چمن کالونی، بیگم کوٹ اور یوسف پارک کے علاقے شامل ہیں۔ عزیز کالونی، اسلام نگر، اتفاق کالونی، حمید پارک، لاریکس کالونی اور نین سکھ کے علاقے بھی پی پی 145 میں آتے ہیں۔ سگیاں چوک، محلہ غوثیہ، معصوم شاہ روڈ، بارہ دری روڈ، بیگم کوٹ اور فضل پارک بھی پی پی 145 میں شامل۔ حلقے کی صورتحال پر مرد و خواتین پریشان، کہتے ہیں عوامی نمائندے صرف ووٹ لینے آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی عوامی نمائندے یہاں پہ کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، اب الیکشن کے دنوں پہ سبھی نظر آئیں گے لیکن بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، حتیٰ کہ صفائی کا عملہ بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا، گلیوں میں کتنے دن صفائی والے نہیں آتے۔ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، دور دراز سے جو ہے وہ فلٹر سے کچھ مخیر حضرات نے فلٹر لگائے ہیں، دور دراز سے ہمیں پانی بھر کے لانا پڑتا ہے، نہ گیس آ رہی ہے نہ پانی صاف آ رہا ہے، اس کے بعد یہ صفائی والے ہیں یہ نہیں آتے۔ پی پی 145 سے نون لیگ کے سمیع اللہ خان، پیپلز پارٹی کے رانا افتخار علی، جماعت اسلامی کے مظہر اقبال، ٹی ایل پی کے عمیر جہانگیر، جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار یاسر گیلانی میدان میں ہیں۔ 2013 اور 18 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون اس حلقہ سے کامیاب ہوئی تھی۔ لاہور کے علاقے مومن پورہ روڈ اور اس سے ملحقہ محلے مسائل کا گڑھ بن گئے ہیں۔ حلقہ پی پی 152 عوامی نمائندوں کی بے حسی کا شکار، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، جبکہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور سیوریج بند ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ لاہور کا صوبائی حلقہ پی پی 152 مسائل کا گڑھ بن گیا، عوامی نمائندے حلقے کے مسائل سے لا علم۔ حلقے میں شامل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,40,525 ہے، مرد ووٹرز 1,28,267 جبکہ خواتین ووٹرز 1,12,259 ہیں۔ حلقے کے اہم علاقوں میں پاکستان منٹ، کوٹلی، پیر عبدالرحمان، سرائے جوڑا پیر، بانور، شاہ دربار، نفیر آباد اور شیر شاہ روڈ شامل ہیں۔ داروغہ والا، بلال
इकबाल कॉलोनी, फारूखाबाद, सिराजपुरा, अलकादिर स्कीम, दुबई पार्क, मोमिनपुरा, शादीपुरा, रशीदपुरा, हमीदपुरा, गुलशन पार्क, मुराद पार्क और नवीद पार्क भी अहम इलाकों में शामिल हैं। मोमिनपुर रोड, मशीनों वाला भट्टा और मोमिनपुरा पिंड समेत मुल्हिका इलाके तरक्याती कामों से महरूम। सड़कों की टूट फूट, सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात, जगह जगह कूड़े के ढेर। सीवरेज का निजाम बोसीदा होने से पीने के साफ पानी से भी इलाका मकीन महरूम है। हल्के के इलाका मकीन कहते हैं कि जो भी आता है वोट लेकर गायब हो जाता है। कोई पुरसाने हाल नहीं, सफाई होती नहीं, सड़कें गलियां टूट फूट का शिकार हैं। साफ पानी के पाइप्स में भी सीवरेज का पानी मिक्स होकर आता है। पानी इतने फुट फुट खड़ा हो जाता है, गटरां च पानी बहुत आ रहा है बाहर। पीने वाला पानी तो भर के लिया बाहरों, और स्कूल को लगा है फिल्टर, उतो भर के लिया। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ। ਸੜਕ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, 2-2 ਫੁੱਟ ਗਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ नहीं। सफाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ। मुस्लिम लीग नून के मलिक वहीद और PTI के हिमायत याफ्ता चौधरी नुमान मजीद PP 152 से इंतखाबी मैदान में आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी के अहमद हसीस शाहिद और जमात इस्लामी के आमिर सिद्दीकी भी इसी हलके से उम्मीदवार हैं। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर राना मशहूद अहमद 43,670 वोट लेकर कामयाब हुए। तो खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के 90% पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए हैं। 44 हलकों में 813 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल, इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम भी जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर में 90% पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। लाहौर के 44 हलकों के लिए मजमूई तौर पर 4,403 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 3,540 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। 813 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। ज़राए के मुताबिक लाहौर में सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार पाए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी के साथ फौजी जवान भी तैनात किए जाएंगे। तमाम पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब होंगे। लाहौर में कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हलकों में पोलिंग 8 फरवरी को होगी। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं और पेट्रोल की मद में भी 53 करोड़ 30 लाख जबकि खाने पीने के लिए 13 करोड़ 30 लाख के फंड्स मिले हैं। CCP लाहौर के इस मुतालिक कहना है कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकात में मुआवनत की जिम्मेदारी को ऐसा तरीके से निभाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड जारी हो गए। पेट्रोल की मद में 53 करोड़ 30 लाख, खाने पीने के लिए 13 करोड़ 30 लाख के फंड्स मिले। 35 करोड़ से ज्यादा के फंड स्पेशल फोर्स की अदम तैनाती पर दीगर हेड्स में खर्च किए जाएंगे। लाहौर पुलिस को 11 करोड़ के फंड सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए जारी हुए। IG पंजाब ने इलेक्शन ड्यूटी के दौरान वेलफेयर का भरपूर ख्याल रखने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनेकात के हवाले से आला पुलिस अफसरान का इजलास हुआ। SSP ऑपरेशन और SP सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी प्लान बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में इलेक्शन मटेरियल और बैलेट पेपर्स की महफूज तरसील का भी जायजा लिया गया। इलेक्शन मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप के जरिए इलेक्शन के इनेकात में मदद ली जाएगी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकात में मुआवनत की जिम्मेदारी को भरपूर निभाया जाएगा। इलेक्शन मटेरियल और बैलेट पेपर्स की महफूज तरसील के लिए भरपूर सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, DIG सिक्योरिटी कामरान आदिल, DIG एडमिन मुंतजिर मेहदी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। बारिशें बरसाने वाले मगरिबी हवाओं के नए सिलसिले ने मुल्क में अपने पर फैलाना शुरू कर दिए हैं। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक मुल्क की बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। माह जनवरी के दौरान तवील खुशसाली के बाद गुज़श्ता दिनों मुल्क के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का सिलसिला देखने में आया। उसके बाद बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का एक नया निज़ाम मुल्क में दाखिल हो रहा है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ये काफी मजबूत निज़ाम है, जिसके बायस 4 फरवरी तक मुल्क गिर बारिशों का इम्कान है। इस दौरान ये सिलसिला पंजाब के बेशतर अजला में भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस सिस्टम के बायस गिलियात समेत मुल्क के दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी हो सकती है, जिसके बायस रास्तों की बंदिश का भी खदशा है। बलोचिस्तान में बारिशों के बायस पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। सूरत हाल के पेश नजर मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरा टीम के हमरा सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। तो मौसम से मुताबिक खबर ये है कि शहर में काले बादलों का राज बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में
हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और कम से कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद। बताइए शाहजेब। जी बिल्कुल, मुल्क भर में मगरिबी तेज़ हवाओं का सिलसिला दाखिल हो चुका है और आपको बताना चलूँ कि आज भी लाहौर शहर में हल्की बूंदाबांदी मुख्तलिफ इलाकाजात में हुई है, जिसमें गुलशन, रावी, लामा इकबाल टाउन, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, जफर अली रोड, कश्मीर रोड, एबर्ट रोड और साथ ही साथ इस्लामपुरा ताता दरबार के इलाके में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है और मौसम उसके बाद शदीद खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला लाहौर शहर में 4 फरवरी तक जारी रहेगा, क्योंकि मगरबी तेज़ हवाएं जो हैं वो मुल्क पे असरअंदाज हो रही हैं, जबकि जो गलियात का इलाका है और पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी बर्फ़बारी होने के इम्कानात को ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में भी जो है वो 31 जनवरी से 1 फरवरी की शब जो है वो बर्फ़बारी होगी और लैंड स्लाइडिंग का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का भी दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। एहतियाती तदाबीर अपनाने की महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है कि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाते रहें और साथ ही साथ गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज भी हवा की रफ्तार जो है वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है और जो हवा में नमी का तनासुब है वो भी 70% के करीब बताया जा रहा है।